નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તકના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ ચાય પે ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। દોસ્તો, એવું કહેવાય છે કે તમને જે ભાષામાં વિચારો આવે, જે ભાષામાં સપના આવે, એ તમારી માતૃભાષા છે। હા, એ વાત સાચી છે। અને માણસ પોતાની માતૃભાષા ઉપરાંત કેટલીક ભાષાઓ જાણતો હોય છે। મોટાભાગના લોકો બીજી ભાષાઓ પણ જાણતા હોય છે અને જેટલી વધુ ભાષા શીખીએ એટલું સારું। તમે કદાચ સમજી ગયા હશો હું કયા વિષય ઉપર વાત કરવા જઈ રહ્યો છું। 14 સપ્ટેમ્બરથી 28 સપ્ટેમ્બર હિન્દી પખવાડા તરીકે ઉજવાય છે, એટલે 14 સપ્ટેમ્બર છે હિન્દી દિન તરીકે ઉજવાય છે। આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં હિન્દી વિષયના બે મહાનુભાવો, બે ધુરંધરો ઉપસ્થિત છે। હું એમની સાથે એ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાનો છું। એ છે રાજકોટની જાણીતી શ્રીમતી જે કુંડલિયા આર્ટ્સ કોમર્સ એન્ડ BBA કોલેજના હિન્દી વિભાગના અધ્યક્ષા પ્રોફેસર ડૉક્ટર અમીબેન દવે પાઠક અને પ્રોફેસર ડૉક્ટર MG ગાંધી સાહેબ। મેડમ સર, આપનું સ્વાગત છે। નમસ્કાર। નમસ્કાર। સૌથી પહેલાં તો અમીબેન, આપને મારે પૂછવું છે કે હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા, આપણે એવું બોલીએ છીએ હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા છે, વાસ્તવમાં સરકારે જે દરજ્જો આપ્યો છે, ભારત સરકારે, એ અધિકૃત ભાષાનો આપ્યો છે, ઓફિશિયલ લેંગ્વેજનો આપ્યો છે, જેને આપણે રાજભાષા કહીએ। તો હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનો દરજ્જો આપવો જરૂરી છે, અને જરૂરી છે તો શા માટે? આપ જો મારા નજરિયાથી પૂછો તો ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે રાષ્ટ્રને જ્યારે એક ભાષા મળે છે ત્યારે એ ભાષા થકી જે સામાન્ય જનતા છે, કે ભણેલ ગણેલ હોય કે પછી અભણ હોય, એ બધા જ એ ભાષા થકી જોડાય છે। એ લોકો સંવેદનાથી જોડાય છે અને એના થકી એનામાં રાષ્ટ્રીયતાની જે ભાવના કહીએ કે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની જે એક ભક્તિ કહીએ કે રાષ્ટ્રીય ચેતના તમે કહી શકો, એનો વધુ ને વધુ ઉમેરો થાય છે અને એકબીજા સાથે એ લોકો વધારે ભાષા થકી નજીક આવી શકે છે। એટલે મારું તો व्यक्तिगत तौर पर मैं ये दृढ़ रूप में मानती हूँ कि उनका जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अगर स्थान दिया जाता है तो लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना सिरमौर होगी। વાહ, બહુ અચ્છા। ગાંધી સર, આપને માટે મારો પ્રશ્ન છે કે હિન્દી દિનની ઉજવણી 14 સપ્ટેમ્બરે જે થાય છે, પછી સપ્તાહ ઉજવાતું હોય છે તો હિન્દી સપ્તાહ તરીકે, ને એક પખવાડિયું ઉજવાતું હોય છે તો એક પખવાડા તરીકે ઉજવાય છે। તો આ શરૂઆત ક્યારથી થઈ, ભારતમાં ક્યારે ઉજવાય છે અને વિશ્વના અન્ય દેશોમાં ક્યારે અને કેવી રીતે ઉજવાય છે? हिंदी दिन को मनाना माने भारत की भाषाओं का सम्मान करना, खास करके हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना। 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान के अंतर्गत ये निश्चित किया कि भाषा को माने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। परंतु एना पहला एक बात ये पण छे कि 1918 अंदर महात्मा गांधीजीए, पूज्य बापुए 1818 में ये नक्की कर्युं हतुं कि हिंदी ने राष्ट्रभाषानो दरज्जो आपवो जोईए, परंतु कोई कारणसर हिंदी ने राष्ट्रभाषानो दरज्जो न आपी शक्या। कारण एटलुं ज हतुं एटले राज्यभाषानो दरज्जो आप्यो। 1949 की 14 सितंबर के दिन भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया। एना पछी 1950, 51 અને 52 अंदर हिंदी दिवस आपणे उजव्यो नथी, किंतु पहली बार 1953 की 14 सितंबर से शुरू करके आज तक पिछले 68 सालों से हम हिंदी दिन मनाते हैं। रही बात दूसरी ये कि विश्व के अंतर्गत, आपका प्रश्न है सर कि विश्व के अंतर्गत हिंदी दिन कब मनाया जाता है और भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदी दिन कब मनाया जाता है। विश्व में 10 जान्युआरीए हिंदी दिवस उजववामां आवे छे
और भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदी भाषा 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। सवाल ये है कि विश्व हिंदी दिनનો ઉદ્દેશ્ય શું છે અને રાષ્ટ્રીય हिंदी भाषाનો उद्देश्य શું છે? तो विश्व हिंदी दिन के दौरान हिंदी को पूरे विश्व में समृद्ध करने के लिए आयोजन किया जाता है और 14 सितंबर माने राष्ट्रीय हिंदी दिन को राष्ट्र में हमारे भारत में हिंदी को समृद्ध सुदृढ़ बनाने के लिए ये हिंदी दिन मनाया जाता है। મેડમ આપને માટે મારો સવાલ હવે એ છે કે ગુજરાતીઓ જ્યારે હિન્દી બોલે છે ત્યારે પોતાનો ટચ ગુજરાતી લેકો એમાં આવી જાય છે, એટલે દરેક રાજ્યને આવું છે, મરાઠીઓ જ્યારે બોલે છે ત્યારે મરાઠી ટચ આવી જાય છે, તો આવું થવાનું શું કારણ? એટલે આપણી પકડ ઓછી હોય છે બોલવાની, અથવા તો આપણી જે માતૃભાષા છે અથવા આપણી જે લોક બોલી છે એનો એમાં સ્પર્શ આવી જતો હોય છે? અને દર્શક મિત્રોને એ પણ મારે કહી દેવું છે કે હિન્દીના 2 અધ્યાપકો, 2 પ્રોફેસર ડૉક્ટર્સ બેઠા છે, એટલે હિન્દીમાં પણ એ થોડું કન્વર્સેશન કરશે, વાતચીત કરશે, એટલે થોડું આપ બંને જે રીતે મેં કીધું એની પહેલાં આપણે શરૂ કરી દીધું છે ગુજરાતી અને હિન્દી, તો આજે એ તડકો પણ આપણને જોવા મળશે। હાજી મેડમ। एक बात होती है कि छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास जिस भाषा को लगातार सुनता है, जिसे वो पढ़ता है, वो उसके जहन में घर कर जाती है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे चाहे वो गुजराती का लड़का हो, लड़की हो, चाहे पंजाब का हो, बंगाल का हो, या किसी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का, वो अपनी भाषा में अपने घर के आसपास अपने घर में बोली जा रही जो भाषा है उससे लगातार सुनता चला आ रहा है बचपन से ही, और फिर उसे धीरे धीरे दूसरी भाषा सिखाई जाती है, और उस नई भाषा को सीखते हुए वो अपने जो मूलभूत भाषा के संस्कार है उसे नहीं छोड़ पाता है। परिणाम यह होता है कि वो ऊपर से सीखी गई भाषा और भीतर जो मूल में पड़ा हुआ है उसकी मातृभाषा, परिणाम स्वरूप जो थोपी गई भाषा है उसके उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, या कि उसके लिखने में, क्योंकि हर एक भाषा का अपना अलग लहजा होता है, माने अपना अलग तरीका होता है। जेम कि गुजराती में हूँ बोलूँ कि केम छो, मजा माने, जबकि हिंदी में कैसे हैं आप, कैसी हैं आप, तो उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है। और गुजराती में जो है लोग अपनेपन से बात करते हैं, वैसे ही बंगाल में है या कि पंजाब में है तो हर एक प्रांत की अपनी विशेषता, भाषा का उच्चारण और उनका लहजा, उनका बोलने का तरीका, तो वो बच्चों के जो लालन पालन में आ जाता है। उसकी वजह से हिंदी जब सीखी जाती है या कि बोली जाती है तो उसमें थोड़ा सा अपनी भाषा का जो है अंदाज हम कहें तो वो आ ही जाता है। सर क्या बात है। सर मैडम आपने माटे मारो प्रश्न ए छे कि आपे शा माटे हिंदी विषय पसंद कर्यो तो ग्रेज्युएशन कक्षाए पछी पोस्ट ग्रेज्युएशन एमां कर्युं ने डॉक्टरेट पण एमां कर्युं, तो पहला सर अने पछी मैडम एवा क्या कारणों हता कि तमे हिंदी बाजू आकर्षित थया? ए 1985 ની વાત છે કે જ્યારે હું 11મા ધોરણની અંદર ભણતો હતો। मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये अहमदाबाद रहते थे और मेरा गांव है वह अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर है। 15 દિવસે एक वखत मारा मोटा भाई अमदावाद थी बसनी अंदर गामड़े आवता था। 85 ની વાત છે કે એ વખતે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર નાના નાના બુક સ્ટોલ હતા અને ગુલશન કુમારની પોકેટ બુક્સ એ વખતે બહુ વેચાતી હતી। મોટા ભાઈ છે એ વાંચવાના ઘણા બધા શોખીન હતા। 3 કલાકનો બસનો રૂટ અને બેસીને 3 કલાકમાં એ પોકેટ બુક્સ પૂરી કરી દેતા। હું 11માં હતો, हिंदीनो एटलो लगाव नहोतो पण भाई लावता था पुस्तक पॉकेट बुक्स एटले हूँ वाँचतो, एमांथी मने प्रेरणा मळी।
પછી સમય બદલાતો ગયો અને ભાઈ મારા માટે એકાદું પોકેટ બોક્સ એક્સ્ટ્રા લઈ આવતા. સ્ટેશન ઉપર યા બસ સ્ટેશન ઉપર યા રેલવે સ્ટેશન ઉપર એ વખતે બુક્સ મેગેઝિન આપણને વેચાતી પણ આપતા અને ભાડાથી પણ આપતા. ભાડાનો મતલબ એ છે કે આપણે કોઈ પોકેટ બુક્સ અથવા કોઈ મેગેઝિન વાંચીને એને પાછી આપી દઈએ તો 50% ભાવ બીજી જે નવી बुक લઈએ છે એમાં એ લોકો આપણને कंसेशन આપતા था. दूसरी बात यह है कि मेरा हिंदी में पढ़ना जारी रहा, रुचि भी बढ़ी रही. और उसी ज़माने के अंतर्गत मैं 85-86 की बात कर रहा हूँ. रेडियो पर अमीन सयानी का एक प्रोग्राम आता था, बिना का गीतमाला. तो अमीन सयानी की ज़बान भी मुझे अच्छी लगती थी और मैं उसे सुनता था. बात आगे बढ़ती गई और बड़े भाई साहब को पढ़ने का शौक़ होने के कारण रजनीश की ओशो पत्रिका, रजनीश का नाम से हम सब जानते हैं रजनीश को, और ओशो पत्रिका लाते थे. मैंने भी उस ओशो पत्रिका को पढ़ना शुरू किया. उस ज़माने में ओशो की बात मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आती थी, किंतु ओशो का एक प्रिय पात्र मुल्ला नसरुद्दीन मुझे आकर्षित करता था. एक ही बात को कई तरीक़ों से समझाने का जो जरिया रजनीश जिसका था, मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा जो समझाते थे, ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया. रुचि बढ़ी. 12वीं कक्षा में हिंदी रखा. कॉलेज में मुख्य तौर पर हिंदी, BA, MA, PhD में भी मैंने हिंदी रखा. और आज पिछले 28 साल के श्रीमती JJ कुंडलिया आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज में हिंदी की सेवा कर रहा हूँ सर. મેડમ આપે હિન્દીને શા માટે પસંદ કર્યું? એમ કહી શકું કે એ કદાચ મારા લોહીમાં જ દોડે છે. કારણ કે મારા માતુશ્રી જે છે ગીતાબેન દવે, ડૉક્ટર ગીતાબેન દવે, એ કણસાગરા મહિલા કોલેજમાં હિન્દીના અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવતા અને વર્ષો સુધી એમણે हिंदी विषय पर काम કર્યું છે. PhD પણ એમણે એ સમયે કર્યું. तो हुआ यह कि मेरे आसपास का जो वातावरण था वो पूरा हिंदी का था. और वैसे भी जो हम सीखते हैं ज़्यादातर माँ से ही सीखते हैं, और मैंने तो उनके रक्त से ही मेरा जो है शरीर बना है, तो मैंने उनके रक्त से ही सीखा है. क्योंकि वो उस समय B.Ed की पढ़ाई करती थी और फिर मैंने जो है यहाँ पर अवतार धारण किया. तो उस समय से मैंने जो है हिंदी को अपने पास पाया, अपने करीब पाया. फिर जो है कबीर की साखियाँ उनके मुंह से सुनती थी, या कि राष्ट्रीय कवि जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य को सुनती थी. महादेवी वर्मा का नाम सुना मैंने, रामचरितमानस के विषय में, तुलसीदास के विषय में. सो बचपन से ही ये माहौल मुझे मिलता रहा. उसकी छोटी सी लाइब्रेरी थी तो उसमें वो किताबें पढ़ी रहती थी. तो धीरे धीरे कॉलेज में गई तो फिर लगा कि चलो हिंदी ही लेते हैं, इतना कुछ सुना हुआ है. तो मैंने कॉलेज में हिंदी विषय को अपना लिया. अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आने लगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही मुझे स्वाभाविक भाषा के रूप में लगने लगी, मेरी अपनी लगने लगी. मुझे गुजराती पण मारी पोतानी ज छे, पण छतांय मने हिंदी प्रत्ये कंईक अलग ज प्रेम उत्पन्न थयो. એટલે હિન્દી સાથે BA કર્યું, MA પણ કર્યું, MPhil પણ કર્યું, PhD पूरू કર્યું. और पिछले जो है 27 सालों से हिंदी की सेवा कर रही हूँ. बस श्रीमती JJ कुंडलिया आर्ट्स कॉमर्स एंड BBA कॉलेज में. तो एक छोटे से पद पर मैं हूँ और हिंदी की सेवा कर रही हूँ, बस ऐसा कह सकती हूँ. सो मेरा रुझान जो है बचपन से ही हिंदी भाषा की ओर ज़्यादा रहा सर. સેવા કરતી વ્યક્તિ કોઈ દિવસ નાના પદ પર હોય નહીં, એટલે એ આપની નમ્રતા છે બંનેની કે વાત કરો છો. પણ મારે હવે પ્રશ્નોત્તરીને રોકીને મારો ઇન્ટરેસ્ટ, મારો રસ એક બીજે વિષય ઉપર છે.
કે તમે બંને સર મેડમ બંને પોતે હિન્દીમાં કેટલુંક સર્જન કરો છો, કાવ્યની રચનાઓ કરો છો, કવિતાઓ લખો છો, પ્રશ્નોત્તરી તો પછી ચાલ્યા કરશે, પણ આ બંને પાસેથી મારે એક એક રચના સાંભળવી છે. સૌથી પહેલાં સર. कविता करना इस संवेदना की बात है और मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ, किंतु कई कबार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि कुछ बातें कलम के द्वारा कागज़ पर आ जाती हैं. कोरोना काल की बात है. मेरा एक बचपन का दोस्त, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोरोना के अंतर्गत ईश्वर को प्यारा हो गया. बचपन से ही साथ में पढ़े थे. छुट्टियों का दिन था 7 मई और उसी दिन उसकी मौत हो गई. उसी को समर्पित करते हुए मैंने एक कविता लिखी है. एक सवेरा था, हंसकर उठते थे, हंसकर रोते थे. एक सवेरा था, हंसकर उठते थे, हंसकर सोते थे. आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो गई, आज बिना मुस्कुराए ही सो गए. आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो गई, आज बिना मुस्कुराए ही सो गए. दिल दिमाग को धक्का बहुत लगा, दिल दिमाग को धक्का बहुत लगा, क्योंकि मेरा एक इक्का चल बसा, क्योंकि मेरा एक इक्का चल बसा. छुट्टियों का माहौल था, माहौल फिर भी गमगीन था. सब कोई स्तब्ध थे. मैं न रोया, मैं न हंसा, बल्कि यूं कहूँगा कि न रोना आया न हंसी आई, क्योंकि मेरा एक इक्का चल बसा. एक सवेरा था, हंसकर उठते थे, हंसकर सोते थे. आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो गई. સંવેદનશીલ કવિતા. મેડમ, આપની રચના પણ અમારા દર્શકોને પ્રસ્તુત કરી દો. मैं छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखती हूँ और वो मेरा शौक़ रहा है. थोड़ी बहुत कहानियाँ लिखी है. प्रयास करती हूँ कि उसमें एक बूंद मैं जो है हिंदी भाषा को समर्पित कर सकूँ. तो मैं जब हिंदी भाषा को अपनाती हूँ तो मेरे भीतर की जो भावनाएं हैं वो या तो कहानी का रूप लेकर बाहर निकलते हैं या कि काव्य का रूप लेकर बाहर निकलते हैं. पर मैं जो है इसे बिल्कुल समंदर में एक छोटी सी जो है बूंद के समान मानती हूँ. एक कविता लिखी है, शीर्षक है दिल की बात. कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें, पनडूबा बन गोते लगाती हूँ, इनमें सच्चे मोती पाने बहाने, सच्चे मोती पाने के बहाने. कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें. इस कदर सताती है सबसे बिछुड़ने की यादें, क्योंकि हम लोगों ने सभी ने अनुभव किया है कि किस कदर हम जो है एक कोने में, एक घर के कोने में जो है बंद कर दिए गए थे कुछ समय के लिए. तो उस माहौल को लेकर मैंने अपनी संवेदना प्रस्तुत की है. इस कदर सताती है सबसे बिछुड़ने की यादें, वो किताबों के ढेर, बच्चों की शरारतें, अर्थात हमारे विद्यार्थी. कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की बरसातें. सुनो खामोशियों के सहारे दूर पत्तों की सरसराहटें. सुनो खामोशियों के सहारे दूर पत्तों की सरसराहटें. बयां करती है उनकी अपनी कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें. हर वक्त ये आलम नहीं होता कि खुद को संभाल सके. हर वक्त ये आलम नहीं होता कि खुद को संभाल सके.
तब भी सब छोड़ ही देते हैं समय के हाथों। कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें। आदत नहीं है मुझे इन तन्हाइयों से गुफ्तगू करने की, आदत नहीं है मुझे इन तन्हाइयों से गुफ्तगू करने की, फिर भी कोशिश लगी रहती है गुत्थियों को सुलझाने की। कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें। तरसते परिंदों की समझो तो सही फड़फड़ाहटे। हमने देखा था मज़दूर लोग यहाँ से वहाँ कैसे जो है परेशान हो रहे थे, घूम रहे थे, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश हो रही थी। तो मैंने वो परिस्थितियों को देखते हुए लिखा है कि तरसते परिंदों की समझो तो सही फड़फड़ाहटे, न जाने कौन से जन्म की बताते हैं। कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें। आगाह करते हैं आज के ये हालात, आगाह करते हैं आज के ये हालात, संभल जाओ। यूं फिसल जाती है, रह जाती है जिंदगी। कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें। अंतिम पंक्तियाँ जो है विशेष तौर पर आज के संदर्भ को लेकर ही मैंने रखी है। बता दो अपनों के संग हंसी खुशी के ये पल, बिता दो अपनों के संग हंसी खुशी के ये पल, फिर तो सिसकती रह जाएगी कुछ तन्हाइयाँ, कुछ बातें, कुछ लम्हों की मुलाकातें। धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है। બંને કાવ્યોમાં આપણે કાવ્ય સરિતાનું જાણે આચમન કર્યું હોય એવો અનુભવ અમારા દર્શકોને પણ થયો હશે. પ્રશ્નોત્તરી આપણે આગળ રાખીએ. મેડમ, વિદ્યાર્થીઓનો આપે આપના કવિતામાં ઉલ્લેખ કર્યો, કાવ્યમાં ઉલ્લેખ કર્યો, તો વિદ્યાર્થીઓને હિન્દીમાં કેટલો રસ હોય છે? પ્રાથમિકમાં હિન્દી ભણાવાય છે, હાઈસ્કૂલમાં પછી ઓપ્શનલ થતું જતું હોય છે, વૈકલ્પિક હિન્દી. કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીમાં કેટલો રસ લેતા હોય છે? પ્રાથમિક કક્ષાએ, હાઈસ્કૂલ કક્ષાએ ઉત્સાહિત હોય છે કે હિન્દી પ્રત્યે નિરુત્સાહ હોય છે? એમાં ખરેખર સર તમને કહું કે થોડો ઘણો અમારો અને થોડો ઘણો માહોલનો બંનેનો જો સંગમ થઈ જાય તો કોઈ પણ ભાષા, એ હિન્દી લઈ લ્યો કે પંજાબી લ્યો કે મરાઠી કે ગુજરાતી, એ અઘરી નથી હોતી. હિન્દી ભાષાને લઈ અને વિદ્યાર્થીઓને થોડીક વ્યાકરણિક ભૂલના લીધે ડર ઊભો કરવામાં આવે છે. ઘણી વખત સરખું ન લખાણું હોય તો એને 2-3 વખત ઘણીવાર આપવામાં આવે છે. અને મૂળભૂત રીતે જે છે એ એના પરિવારની ભાષા નથી હોતી, એટલે વિદ્યાર્થી થોડોક એનાથી દૂર ભાગતો જાય છે. ज़्यादातर जिम्मेदारी, जहाँ तक मेरा विचार है, कि हम शिक्षकों पर है कि हम बड़े ही प्रेम से उसे किस तरह लिखा जाता है, उसे किस तरह समझा जाता है, कहाँ पर उसकी गलती है और कहाँ पर उसे उन्हीं गलतियों को कितनी सरलता से सही किया जा सकता है. वो अगर जो है जैसे पंचतंत्र की हम कहानियों को कहते हैं और उसी के साथ बोध रहता है, तो वैसे धीरे धीरे करके उस भाषा के व्याकरण को, उसकी शालीनता को, शब्द परिवर्तन को अगर छोटे रूप से ही आरंभ करते हुए कॉलेज तक ले आए तो मैं नहीं मानती कि कोई भी विद्यार्थी इससे भाग गए. और ज़्यादातर उसके मन में डर ही रहता है. एक बार इस भाषा का डर निकल जाए कि नहीं कोई बात नहीं, गलती है सुधर जाएगी, तो वो इस स्थिति को बहुत ही सरलता से अपना लेगा. એટલે હું એમ કહી શકું કે જો બાલ મંદિરથી લઈ અને કોલેજ સુધી એને ધીરે ધીરે એનામાં આત્મવિશ્વાસ ઊભો કરવામાં આવે ભાષા પ્રત્યે, તો એ ચોક્કસ અને ચોક્કસ હિન્દી ભાષા પ્રત્યેનો પ્રેમ દેખાડી જ શકે. વાહ સર, મારે એ પૂછવાનું છે આપને કે ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ એટલે મોટે ભાગે એવું વિચારતા હોય છે કે હું આ કોર્સ કરું, આ વિષય રાખું તો મને કેટલો ફાયદો થાય, મને નોકરીની તકો કેટલી. તો હિન્દી રાખ્યા પછી
એક વિદ્યાર્થી ગ્રેજ્યુએશન કરે છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરે છે કે આગળ ઉપરનો અભ્યાસ કરે છે, તો હિન્દી રાખ્યા પછી એને નોકરીની તકો કેવી અને કેટલી? સામાન્ય રીતે હવે તો એવું થઈ ગયું છે કે કોઈ પણ નોકરી ક્લર્કથી શરૂ કરીને ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2 અધિકારી માટે ગ્રેજ્યુએશન તો જોઈએ જ છીએ. એની સાથે હિન્દીની જો વાત કરવામાં આવે તો હિન્દીની અંદર BA, MA અથવા તો કોઈ પણ અભ્યાસ કર્યા પછી જે અન્ય વિષયોની સ્થિતિ છે એ જ સ્થિતિ હિન્દીની છે. પણ હિન્દી સાથે ગ્રેજ્યુએશન અથવા માસ્ટરી કરવાથી સામાન્ય રીતે કેન્દ્ર સરકારની ઘણી બધી કચેરીઓ જેવી કે બેંક, ટેલિફોન વિભાગ, રેલવેની અંદર એક હિન્દી अधिकारी તરીકેની એક नौकरी એને મળે છે. मतलब एक स्पेशल जो पोस्ट हैं केंद्र सरकार ने दाखिल की हैं. प्रत्येक बैंक के अंतर्गत एक हिंदी अधिकारी को हम पाते हैं. जैसे कि आपकी चैनल हैं, आपका अखबार है, ज़्यादातर अखबारों में और चैनलों में हिंदी अनुवाद करने के लिए भी हिंदी के कुछ छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं. तो इसी प्रकार से हिंदी के साथ पढ़ने के बाद टीचर, प्रोफेसर के साथ साथ केंद्रीय हिंदी अधिकारी के रूप में कुछ अखबारों में, कुछ टीवी चैनलों में या कुछ पत्र पत्रिकाओं के ऑफिस के अंतर्गत भी छात्रों को हिंदी के अधिकारी के रूप में नौकरी मिलती है. મેડમ, હિન્દીને લોકપ્રિય કરવા માટે કોઈ ફોર્મ્યુલા એવી આપણી પાસે છે કે જે અજમાવવાથી વિદ્યાર્થીઓ, સમાજ હિન્દી પ્રત્યે વધુ આકર્ષિત થાય, વધુ ખેંચાય? मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यह कि हिंदी एक बहुत ही मीठी भाषा है. इसलिए अगर सांवेदिक तौर पर लोगों को आकर्षित किया जाए, राष्ट्रभाषा के रूप में उसे अपनाया जाए, या कि नौकरियों में जो है जिस प्रकार साहब ने बताया वो सुविधाएं अधिक उपलब्ध की जाए और हिंदी जो है उसे सरल से सरलतम रूप में स्वीकार किया जाए. यह नहीं कि उसे एक खाके में बांध दिया जाए कि नहीं भाई आनाथी बारे निकलशो तो ये हिंदी नहीं गणाय. अगर उसे आम जनता के साथ मिलाना है, उसे सभी को साथ लेकर चलना है, तो सभी की हिंदी को अपनाना पड़ेगा. तो એને વધુ ને વધુ સરળ બનાવી અને લોકો સુધી જો પહોંચાડવામાં આવે, જેમ કે આપ સર પ્રયાસ કરો છો, એ પ્રકારે જો પ્રયાસ સતત થતા રહે તો હું નથી માનતી કે એ ભાષાને જે છે એ સર્વ સ્વીકૃતિ મળી શકે. સર, આપણે હિન્દીને લોકપ્રિય કરવાની ફોર્મ્યુલાની વાતો કરીએ છીએ, જ્યારે ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતમાં, હિન્દી પ્રત્યે એક પ્રકારની સૂગ કે નફરત સેવવામાં આવે છે કે ત્યાં તમે હિન્દી બોલો, એ લોકો સમજે તો પણ તમારી વાત ના સાંભળે, એ લોકો હિન્દીમાં બોલે નહીં, તમે એની ભાષા નથી સમજતા, છતાં પણ હિન્દી તો એ સામાન્ય ભાષા છે દેશની, છતાં પણ એ લોકો હિન્દી નથી બોલતા. તો આવો માહોલ ક્યાં સુધી અને આના કારણો શું હોઈ શકે? 1949ની અંદર હિન્દીને આપણે રાજ્યભાષાનો દરજ્જો આપ્યો. એ વખતે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે થોડોક સમય માટે, कुछ समय के लिए हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को उसके विकल्प की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए. परंतु परिस्थिति एवी बनी कि 1965 સુધી हिंदी ने राजभाषा तरीके न स्वीकारी. कुछ हिंदी प्रेमियों ने यह मुद्दा उठाया कि वे काफ़ी समय हो गया है, राज्यसभा ने निश्चित किया है कि हिंदी को मुख्य तौर पर राजभाषा के रूप में स्वीकार किए. हलचल शुरू हुई અને 1965ની અંદર હિન્દી ભાષાને રાજ્યભાષા તરીકે વિકસિત કરવાનું જે રીતે જાહેર કર્યું, દક્ષિણ કે કુછ રાજ્ય, દક્ષિણના રાજ્યોએ એનો જોરદાર વિરોધ કર્યો. દંગા ફસાદ हो गया, कुछ लोगों की मौत भी हो गई और इन लोगों ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने के लिए मना कर दिया.
आपका सर दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं मेरे अपने नज़रिए से अगर बात करूं तो पूरे विश्व के अंतर्गत 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। एशिया में 2200 भाषा का प्रचलन है, हम 2200 भाषा को बोलते हैं। भारत में भी 22 भाषाओं हम बोलते हैं। एशिया में 2200 भाषा, भारत में 22 भाषाओं का बोलते हैं। और काफ़ी बोलियों का प्रचलन भारत के अंतर्गत है। हम सर्वधर्म सर्वभाषा में मानने वाला हमारा देश है। बात ये है कि कुछ लोगों की मानसिकता के कारण कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदी को या अंग्रेजी को, ठीक अंग्रेजी को तो ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेजों के जाने के बाद भी स्वीकार कर लिया, किंतु कुछ प्रांत के लोगों की अपनी संकुचित मानसिकता के कारण ये हुआ कि अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हम अपनाएंगे तो हमारी भाषा का कुछ महत्व नहीं रहेगा। सर दूसरी बात ये भी है कि अगर हमें हमारा विकास करना है, राज्य का विकास करना है, हम जो सोचते हैं हमारी मातृभाषा के अंतर्गत सोचते हैं। हम भाषा कोई भी बोलते हैं किंतु सोचना हमारी मातृभाषा के अंतर्गत होता है। और दक्षिण के कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया कि भाई हमारी भाषा का क्या होगा। कुछ राजनीतिक बातें भी, कुछ राजनीतिक दल भी इसमें शामिल थे और परिणाम ये हुआ कि हिंदी को आज राष्ट्रभाषा तक पहुंचना था, वह आज भी 1953 से लेकर जब राजभाषा स्थापित की, हिंदी दिन मनाया गया, पिछले 68 सालों से हम प्रयत्न कर रहे हैं, हिंदी दिन मना रहे हैं, हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़े बना रहे हैं, किंतु हिंदी की स्थिति वही की वही है, ये आज हम देख सकते हैं। अच्छा सर, રાજભાષાનો જ ઉલ્લેખ નીકળ્યો છે તો એ પ્રશ્ન પણ પૂછી લઉં આપને કે ગુજરાતીઓનું પ્રદાન રાજભાષા સ્થાપિત કરવામાં, હિન્દીને રાજભાષા બનાવવામાં ગુજરાતી લોકોનું પ્રદાન શું છે અને કોનું પ્રદાન છે? ये बहुत सरस प्रश्न है साहब कि मैंने पहले ही बताया था कि 1918 के अंतर्गत 1918 महात्मा ગાંધીજીએ સાહિત્ય સંમેલનની અંદર એ નક્કી કર્યું હતું કે હિન્દીને प्रस्ताव મૂક્યો હતો કે हिंदी ने राष्ट्रभाषा बनावानी છે। मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा बनाने का पहला आयोजन महात्मा गांधी जी ने किया। बात आगे चलती गई और स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी गांधी जी के साथ जुड़ गए। उन्होंने भी हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा महत्वनी बात ये है कि 1949 में जब राज्यभाषा गठित करने का एक आयोग बना था, एक समिति बनी थी, એ સમિતિની અંદર આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર ગુજરાતી સાહિત્યકાર કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી પણ એ સમિતિની અંદર હતા। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी को राजभाषा तक पहुँचाने के लिए गुजरात के 3 बड़े लोगों का नाम अथवा 3 बड़े लोगों का सहयोग। मैडम, हिंदी विषय अपनी कॉलेज में मुख्य विषय तरीके चाले छे, विद्यार्थीओ पण घणा बधा रस धरावता होय छे हिंदी में, तो कॉलेज छे ए हिंदी ने केंद्र में राखीने तमे लोको विद्यार्थीओ माटे कई कई प्रवृत्ति वर्ष दरमियान करता हो छो? हिंदी मुख्य विषय राखवावाळा विद्यार्थीओ तो छे ज, पण साथे साथे अमारी कॉलेज में कॉमर्स पण, इंग्लिश मीडियम कॉमर्स चाले छे अने बीबीए पण चाले छे। आ बधा ज विद्यार्थीओने एक मंच उपर लई आववा माटे थई अने हिंदी अमारी पासे बहु ज सारामां सारुं साधन छे। हिंदी सप्ताह अमे मनावीए, अलग अलग प्रतियोगिताओनुं आयोजन करीए। ए प्रतियोगिताओमां जे छे ए विद्यार्थीओ निबंध, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता छे, हिंदी शुभेच्छा कार्ड प्रतियोगिता है। एमां एक समय तो आप सर कल्पना नहीं करी शको कि अमे विद्यार्थीओने एम कीधुं कि जे आपणा सिपाहीओ छे, कि जे नेवीना छे,
કે જે આર્મીના છે એ બધાય આપણા જે સંરક્ષકો છે એને સંબોધીને તમે શુભેચ્છા કાર્ડ લખો અને જે વિદ્યાર્થીઓએ શું સરસ શબ્દોમાં પોતાની લાગણી અભિવ્યક્ત કરી છે અને એ પણ હિન્દી ભાષા લઈને. એમાં BBAનો પણ વિદ્યાર્થી હોય છે, એમાં કોમર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમનો પણ વિદ્યાર્થી હોય છે અને આર્ટ્સ FYBAનો પણ વિદ્યાર્થી હોય છે. એની સાથે સાથે શુભેચ્છા કાર્ડમાં એટલે એ લોકો રંગ પણ પૂરે છે, પોતાની લાગણી પણ અભિવ્યક્ત કરે છે. પછી પત્ર લેખન, કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે આ જે માહોલ છે આપણી પાસે એક નાનું સાધન આવી ગયું છે, સો उस वजह से हम कभी पत्र लिखने के लिए बैठते ही नहीं हैं, पर बच्चों को अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति के लिए एक मौका देना चाहिए. सो हम वो मंच प्रदान करते हैं कि आप अपने माता पिता को पत्र लिखिए, आप अपने किसी छूटे हुए मित्र को पत्र लिखिए जो आपके स्कूल में रहा होगा, बहुत ही करीबी दोस्त है, आप उसको पत्र लिखिए. और फिर जो बच्चे अपनी संवेदनाएं, जो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, उसे पढ़ते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर. तो वो प्रतियोगिता फिर वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं. इन सारी प्रतियोगिताओं के अलावा हिंदी साहित्य अकादमी जो है अहमदाबाद में, वहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन होता है. तो हमारी कॉलेज के विद्यार्थी करीबन पिछले 10 सालों से वहाँ पर जाकर जो है वक्तृत्व में पहला या दूसरा क्रम प्राप्त करते हैं, जो कि हमारी कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है. इसके साथ साथ वे लोग निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, मानस मंथन माने रामचरित मानस को लेकर उसके प्रश्नोत्तर होते हैं. तो मानस मंथन प्रतियोगिता होती है, तो उसमें हमारे विद्यार्थी जाते हैं. फिर वक्तृत्व होती है प्रतियोगिता, तो उस प्रतियोगिता में भी जाते हैं. और हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो अहमदाबाद का हिंदी साहित्य परिवार है वो आयोजन करता है. तो यहाँ के छात्र, हमारी कॉलेज के छात्र वहाँ पर जाकर हमारी कॉलेज का नाम रोशन करते हैं और हिंदी को अपनाते हुए वे बहुत ही हर्ष महसूस करते हैं. इतना ही नहीं, वहाँ पर उन्हें जो है मेडल दिया जाता है. जब उनका पहला या दूसरा क्रम आता है तो उन्हें जो है साहित्य परिवार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और मेडल भी मिलता है. सो वो जहाँ कहीं पर भी जाएगा उसे नौकरी में बहुत ही उपयोगी होगा. तो इतनी सारी प्रतियोगिताओं को हम लेते हैं. फिर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं कि भाई विश्व पर्यावरण दिन है, आप हिंदी में सूत्र लिखिए और पर्यावरण की किसी समस्या को आप जो है चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए, परंतु जो सूत्र लिखना है वो हिंदी में लिखना होगा. सो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम जहाँ तक हो सके इन सारे छात्रों को एकजुट करके उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं. आप सर विश्वास नहीं करेंगे, कुछ एक बच्चों को इन सर्टिफिकेट के आधार नौकरी भी मिली है और वे हमें मिलने के लिए आते हैं. सो बस एक छोटा सा हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों तक हिंदी हम पहुंचाएं. सो हम उसमें थोड़े बहुत सफल होते हैं. जो आपके माध्यम से ये बात मैं जो है जाहिर कर सकी. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा मुझे. મેડમ આ વાત મારે હવે પછીનો પ્રશ્ન પૂછવો છે એમાં મદદરૂપ થશે, કેમ કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ આટલો રસ લે છે, આપણા વિદ્યાર્થીઓ આટલું આગળ જાય છે, તો એનું જ કદાચ પરિણામ છે. મારે સરને પૂછવું છે કે વિદેશીઓ પણ હવે હિન્દી શીખવા આતુર બન્યા છે ને હિન્દી શીખી રહ્યા છે. ભારત આવે છે, થોડો સમય રોકાય છે ને હિન્દી બોલતા થઈ જાય છે. તો આવું આકર્ષણ હિન્દી જગાવી શક્યું છે, હિન્દી ભાષા જગાવી શકી છે. આપ શું માનો છો, શું કહેશો? હિન્દી ભાષા મેડમને જે રીતે બતાવી કે એની જબાન જે છે એ મીઠી છે. હિન્દી ભાષા ભારતીય સંસ્કૃતિનું હિન્દી ભાષા દ્વારા જતન થાય છે. જેટલા પણ हिंदी प्रेमी છે એ હિન્દીને પ્રેમ કરે છે. सवाल सर आपका ये है कि विदेशी लोग हिंदी के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? तो इसका पहला कारण ये है कि हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत अच्छी है,
सुदृढ़ हैं और भारतीय संस्कृति के दर्शन उसी के अंतर्गत होते हैं। મોટાભાગના વિદેશીઓ એ સંશોધન કરવા માગે છે કે આ હિન્દી ભાષા ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી વ્યાકરણ की દૃષ્ટિથી એનું શું મહત્ત્વ છે, પહેલું કારણ એ છે। બીજું કારણ એ છે કે વિશ્વની અંદર ભારત એક એવો દેશ છે કે જે વ્યાપારનું મોટામાં મોટું केंद्र है। अगर कोई व्यक्ति को, कोई देश को अगर अपनी चीज़ को बेचना है तो उस बेचने के लिए, उस चीज़ को बेचने के लिए उसको एक भाषा का माध्यम चाहिए, क्योंकि उसको महत्व समझाने के लिए एक भाषा ज़रूरी है। तो अपनी बात को, अपनी चीज़ को बेचने के लिए विज्ञापन भी हिंदी में देते हैं। तो एक व्यापार की दृष्टि से भी ये लोग हिंदी को विदेशी लोग अपनाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मेरी दृष्टि से ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति विविध प्रकार की संस्कृति है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग परंपरा, प्रांतीय परंपरा इतनी अच्छी हैं कि विदेशी लोगों को इसके प्रति आकर्षण होता है और हमारी ये संस्कृति को जानने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए, हमारे त्योहारों को जानने के लिए, हमारे परंपराओं को जानने के लिए हिंदी की ओर आकर्षित होते हैं और वही लोग हिंदी को अपनाते हैं या हिंदी को सीखने की कोशिश करते हैं। सर મેડમ, સર આપની સાથે તો આ વિષય ઉપર જેટલી વાતો કરીએ એટલી ઓછી છે। ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અમને પણ, અમારા દર્શકોને પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે। ફરી પાછા આપણે કોઈ બીજા વિષયને લઈને આપના જ્ઞાનનો લાભ લેશું, આપના અનુભવનો લાભ લેશું। આ ચર્ચાને આપણે અહીંયા અલ્પવિરામ આપીએ અને આપનો એક સંદેશ મેડમ, સૌથી પહેલાં આપનો અમારા દર્શકો માટે, અને એ પછી સર આપનો। एक ही छोटी सी व्याख्या बताती हूँ। सहितेन इति साहित्य, जो हित के साथ लिखा जाता है। अब हिंदी से जुड़ा साहित्य, हिंदी से जुड़े लोग, वो जितना फैलेंगे उतना ही समाज जो है वो सुधारने की ओर जाएगा। जैसे रामचरितमानस को लोग पूजा घर में रखते हैं, इसकी अपेक्षा उन्हें बाहर निकालकर अगर पढ़ाने का और पढ़ने का प्रयास होगा तो आप सोचिए कि एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ राजा, किस प्रकार की व्याख्या उसमें दी गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीयता के भाव, इतना ही नहीं संवेदना के भाव, इतना ही नहीं यह भी समझाया जाता है कि अहम अगर ऊपर उठता है फिर नुकसान हम खुद को ही करते हैं। ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हिंदी जो है वो सभी तक पहुंच सकती है। और इसीलिए सभी अगर हिंदी भाषा को अपनाते हैं, उसे सीखते हैं, तो निस्संदेह दूसरे देशों को हम कई पीछे छोड़ जाएंगे और भारत देश जो है अपनी भाषा की सुदृढ़ता के सहारे बहुत आगे निकल सकेगा। એટલે મારું તો વ્યક્તિગત રીતે એવું માનવું છે કે ખરેખર હિન્દી જો વધુ ને વધુ શીખવામાં અને શીખવાડવામાં આવે તો ભારત દેશના વિકાસને એને આગળ વધતો કોઈ રોકી શકે એવું નથી। सर आपका धन्यवाद कि आपकी चैनल में हमें बोलने का चांस दिया। मैडम ने बताया कि साहित्य समाज में उपयोगी है, साहित्य समाज का दर्पण है। संदेश के रूप में अगर मैं व्यक्तिगत ये बात करूं आज के विषय के संदर्भ में, तो मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। कोई भाषा छोटी नहीं है, कोई भाषा बड़ी नहीं है, किंतु अगर तरक्की करनी है, આપણો વિકાસ કરવો છે, ટેકનોલોજીમાં આગળ જવું છે, વિજ્ઞાનમાં આગળ જવું છે, તો અંગ્રેજીનો સહારો આપણે લેવો જ પડશે। दूसरी बात ये भी है कि मैं कई बार कह चुका हूँ, मैडम ने भी बताया कि ये हिंदी है, हमारी संस्कृति को
उजागर करती हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये जनमानस की भाषा है, देश को आगे ले जाना है, गांव-गांव तक, चप्पे चप्पे तक अगर हमारी बात पहुंचानी है तो हिंदी का उपयोग हम कर सकते हैं। जब संवेदना की बात आती है, जनमानस की बात आती है, मैं दूसरी बार कहता हूँ कि मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सभी भाषा मेरे लिए सम्माननीय है, किंतु अंग्रेजी हैं वह विदेश से आई हुई हैं। हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि अंग्रेजी हैं वह ऐनक माने चश्मा है, जबकि हिंदी हमारी आँखें हैं। अंग्रेजी माने पाउडर का दूध हैं और हिंदी माने हमारी माँ का दूध है। अब हम हिंदी प्रेमियों को हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित करना है कि हमें कौन सी भाषा अपनानी है। हम सबको मिलकर ये निश्चित करना होगा कि हिंदी को आगे बढ़ाए, हिंदी को बचाए रखें और हिंदी को हम जिस मुकाम तक पहुंचाना है उसी मुकाम तक पहुंचाने की हमारी कोशिश जारी रहे। तो दर्शक मित्रों, हिंदीने केंद्રમાં રાખીને આજે સરસ મજાની ચર્ચા આપણે કરી। ફરી પાછા કોઈ નવા વિષય સાથે, નવા વિષયના નિષ્ણાત સાથે મળશું, મુલાકાત કરશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।